போற்றி போற்றி ரிணலிங்கேஸ்வரா போற்றி 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 இக்கணமும் உன்னை போற்றி. Who is that? Now? Yes, Yeah, ma'am. we can see it. Okay. These all things we have seen. Reduction technique using K-maps. Okay, 3 variable, 2 variable, 3 variable. Same way 4 variable K-maps. And then how we substitute the values of the truth table. That is the Y output of the truth table. How it is being submitted. That is substituted in the K-maps. That also we have observed. Okay. Now let's go on and move ahead. It's clear up till here, all of you, na? Students? Yes. 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 Okay. Now let's see how do we group the variables in K-map. हाँ, substitute कैसे करना सबको समझ में आया ना? आउटपुट सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स डिस्कस किया है. पहले भी मैंने बताया था, बट जस्ट कल बिकॉज मुझे सब लोगों ने रिवाइज करने बोला. सो जस्ट लुक एट द लेजर पॉइंटर. So this is how you transfer a truth table into the K-map. So let's say this is a equation given to us, f of a comma b, which is equal to summation of m1 comma 2. Okay, तो हम पहले तो ये ऐसा ट्रूथ टेबल बना लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1. Later on you will see that making of truth table is also absolutely not required when we actually solve sums for K-maps. हाँ, बाद में हमको समझ में आएगा. अभी शुरू में मैं बनाऊंगी because you need to understand the concept. इसके लिए बाद में तो ये सम और भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं. तो 0 0 के लिए आउटपुट 0 है, 0 1 के लिए 1 है, 1 0 के लिए 1 है, 1 1 के लिए 0 है. अभी ये आउटपुट जो y आउटपुट है ये इस तरह से ऐसे क्यों आया? Why it has come in this way? From where did we get these values? 0 1 1 0. ये values हमें न्यूमेरिकल फॉर्म से मिले हैं. Okay, we have said m summation of m is 1 comma 2, means minterm position 1 is high and minterm position 2 is high. So that is why we got m1 as 1 and m2 as 1. And then later on when we substitute in the truth table, we get that as 0 0 is minterm position 0. Uska output value 0 hai. So that will get substituted in the 0th minterm position. What is the output value of m1 will get substituted in the first minterm position. What is the value of m2 will get substituted in the second minterm position. And what is the value of m3 output will get substituted in the m3 position of the K-map. समझा ना ये concept? How do we substitute the outputs in the given K-maps? How do we fill in the outputs in the given K-map? All of you? Yes, ma'am. ओके अभी ये 3 वेरिएबल वाला है. ये रैंडमली ऐसे ही मैंने लिख दिया था लास्ट टाइम 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक. एंड ये रैंडम आउटपुट्स लिखा था मैंने 1 0 0 0 1 1 1 1. ठीक है, तो अभी when we make the 3 variable K-map we have made it in this way: A, B and C. A is the MSB. Okay, so this is the way the positions the minterm will come 0 1 2 3 4 5 6 7. तो उसके हिसाब से we go on substituting the value. m0 output 1 in m0 position. हाँ, तो 1 0 0 0 1 1 1 1. तो वो इस तरह से फिलअप होगा 1 0 0 0 1 1 1 1. मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7. ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. Understood now all of you? Same way it will go on for 4 variable K-map. I hope this is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay. Now let's go for the grouping. अभी fill up करने के बाद grouping आता है. अभी grouping of variables हम कैसे करते हैं? Okay. अभी groups किन चीज के बनेंगे वो पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा. अभी when we are doing the grouping in K-maps, for min term we group 1 and for max term we group 0. तो अभी फिलहाल हम min term कर रहे हैं. That's why we will focus on min term. Okay. तो यानी कि min term में ग्रुपिंग किस चीज का होगा? min terms में ग्रुपिंग होगा 1 का, 1 वैल्यू का, लॉजिकल 1.
ठीक है, तो अभी 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में या 4 वेरिएबल में हम किस तरह से ग्रुपिंग करें, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंगल्स। तो काफी इजी है बिकॉज सिंगल्स होते हैं, यानी कि वन सिंगल वन, नो अदर वन इन द विसिनिटी, वो सिंगल बन जाता है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पेयर, देन क्वाड, देन ऑक्टेट एंड सिंगल्स। पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ टू एडजेसेंट जीरोज और वन। हाँ, जीरोज हम पेयर करेंगे मैक्स टर्म्स के लिए, वन हम पेयर करेंगे मिन टर्म्स के लिए। तो अभी हम मिन टर्म सॉल्व कर रहे हैं, बट ये जो अप्लाई होगा ग्रुपिंग, वो दोनों टेक्निक्स के लिए अप्लाई होगा। मिन टर्म्स में हम ग्रुपिंग पे ध्यान देंगे वंस के ऊपर, वी विल फोकस ऑन वंस, एंड फॉर मैक्स टर्म वी विल फोकस ऑन जीरो। दैट्स क्लियर टू एवरीवन ना, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ ग्रुप ऑफ टू एडजेसेंट जीरोस या वन हम पेयर करने वाले। तो अभी ये 2 वेरिएबल वाला के मैप है, तो इसमें किस तरह से ग्रुप आएगा, दैट वी विल सी नाउ। ओके, सो अगर एडजेसेंट वंस है तो इस तरह से ग्रुप, इस तरह से पेयर बन सकता है, या इस तरह से भी बन सकता है। वन वन मीन्स यहाँ पे वन वन होगा, या फिर यहाँ पे वन वन होगा, तो वो इस तरह से ग्रुपिंग बन सकता है। दैट विल डिपेंड अपॉन वेयर इज द पोजिशन ऑफ वंस। तो वो सम टू सम पे डिपेंड करेगा। मैं सारे अभी तुम्हें बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है। या फिर हम ऐसे एडजेसेंट वंस भी ग्रुप कर सकते हैं, या फिर ये एडजेसेंट वंस भी ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही 3 वेरिएबल वाले में हम ऐसे ग्रुप कर सकते हैं, वर्टिकली ग्रुप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रुप कर सकते हैं। वी कैन नॉट ग्रुप डायगोनली, ये गलत है। डायगोनल ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, ओके। ओनली वर्टिकल ग्रुपिंग इज पॉसिबल और हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग इज पॉसिबल फॉर पेयर्स। पेयर्स मीन्स ग्रुप ऑफ टू वंस, ठीक है। वैसे ही एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं फोल्डिंग ऑफ मैप। यानी कि मतलब क्या, अगर मैं ये एंड और ये एंड को, एक्सट्रीम एंड ऑफ के मैप को अगर मैप करती हूँ, यानी कि मान लो अगर यहाँ पे एक वन है और यहाँ पे एक वन है, तो आई कैन फोल्ड द मैप एंड फॉर्म अ पेयर। तो फोल्डिंग का सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि अगर मैंने ये दोनों साइड्स को फोल्ड किया तो मुझे ये एक्सट्रीम एंड्स पे जो वन है वो एक पेयर बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग Yes, ma'am. स्टूडेंट्स? ओके, देन सेम वे ये वर्टिकल 3 वेरिएबल वाले के मैप पे, तो यहाँ पे भी वर्टिकल ग्रुपिंग हो सकती है या हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग हो सकती है, या फोल्डिंग ऑफ मैप से भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम गोज फॉर 4 वेरिएबल के मैप्स। वर्टिकल ग्रुपिंग हो सकता है जहां जहां पे वंस अवेलेबल होगा, मैं अभी रैंडमली तुम्हें बता रही हूँ, या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फोल्डिंग द्वारा तुम कोई भी पोजीशन में जहां पे मैप फोल्ड होके हमें पेयर मिलेगा एक वन वन एडजेसेंट कॉमन रो में या कॉमन कॉलम में, देन वी कैन ऑब्वियसली फोल्ड द मैप एंड गेट द पेयर्स ऑफ वन। वैसे ही सिमिलरली अप्लाइड टू जीरो, समझा ना? फोल्डिंग कैन बी डन आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, डायगोनल फोल्डिंग इज नॉट अवेलेबल, या फिर डायगोनल फोल्डिंग इज नॉट अलाउड। डायगोनली नो पेयरिंग कैन बी डन। Is that clear to everyone? All of you? Yes, ma'am. Just a moment. Huh?
ओके आफ्टर पेयर्स वी विल मूव ऑन टू क्वाड. पेयर का मतलब है टू वंस या टू जीरोस. वैसे ही क्वाड, क्वाड का मतलब है ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट जीरोस और वंस, उसे हम क्वाड कहेंगे. 4 एडजेसेंट जीरोस या 1. अभी टू वेरिएबल वाले में अगर कुछ हमें इस तरह से वैल्यू मिलता है तो वो एक क्वाड बन जाता है. ओके तो वो एक क्वाड बन जाता है. ऐसे अगर मिला तो, हाँ. वैसे थ्री वेरिएबल वाले में अगर ऐसे हमें 4 वेरिएबल्स का वंस मिलता है तो एक वो क्वाड बन जाता है. या फिर यहाँ पे भी अगर 1 1 है तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस एज अ पेयर वी कैन fold the map, fold this map like this and form a quad. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Students? हाँ. So by folding of map, if we are getting group of 4 ones, that will be called as a quad. ठीक है. वैसे ही 3 वेरिएबल वाले में अगर यहाँ पे वंस है ऐसे कुछ, तो हम ये मैप को कुछ इस तरह से फोल्ड करके इन दिस पैटर्न वी कैन गेट अ क्वाड. ओके. or if we are having here ones also we can get a quad. It depends upon what is the sum given. ये जो 1 का पोजीशन होता है that depends upon the numerical question कि क्वेश्चन हमें क्या दिया है, उसके हिसाब से वो 1 आएगा. Understood now? Students? Yes. Yes, ma'am. हाँ. सेम वे गोज विथ 4 वेरिएबल्स. 4 वेरिएबल वाले में जहां पे तुम्हें वंस मिलेंगे ऐसे, वहां पे क्वाड बन सकता है. इधर भी फोल्डिंग ऑफ मैप द्वारा क्वाड बन सकता है कुछ इस तरह से. हाँ. इसमें और एक इंटरेस्टिंग 4 वेरिएबल वाले में और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मान लो इफ देयर आर वंस गिवन ओवर हियर लाइक दिस एट 4 एजेस. ओके. तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग these two as pairs and these two also as pairs, I can make a quad. Okay, I can make a quad. How? I will show you. अगर हमने ये चारों एजेस को फोल्ड किया, हाँ, तो हमें क्वाड मिलेगा ना. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे कि ये नैपकिन है, मान लो दिस इज योर नैपकिन. हम ये चारों एजेस को अगर फोल्ड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से वो मिलेगा ना. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. तो ये वन जैसे क्वाड बन सकते हैं ना. मैं भी अभी ऑनलाइन में मैं यही दिखा सकती हूँ. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो एजेस है इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं देन दैट वन वन कैन फॉर्म अ क्वाड ना. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो वो फोल्डिंग हम इस तरह से दिखाएंगे ऐसे. Understood quads, grouping of quads, all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay. थर्ड है ऑक्टेट. Okay. Next in this is octet. Just a minute. हाँ. मैं थोड़ा चश्मा पहन लेती हूँ, मेरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है.
ओके, सो ये ऑक्टेट है। अभी ऑक्टेट कैसे ग्रुप करते हैं देखेंगे। ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8। सो ग्रुप ऑफ 8 वेरिएबल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 वेरिएबल्स। जस्ट अ मिनट, मेरा इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। दिस इज ग्रुप ऑफ 8 zeros और ones, ग्रुप ऑफ 8 zeros या ones। तो अभी अगर ये 2 वेरिएबल वाला के मैप है, इसमें मुझे कोई ऑक्टेट मिलेगा क्या? विल आई गेट अ ऑक्टेट इन दिस? No, ma'am. No, because it itself is having only 4 variables. So here no octates you will be getting. ठीक है, बिकॉज ओनली इट इज हैविंग एग्जिस्टेंस ऑफ 4 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल वाले में ऑक्टेट मिल सकता है मुझे, यस, अगर सारे के सारे वंस है तो मुझे कुछ इस तरह से ऑक्टेट मिलेगा। इधर भी ये वाली चीज में भी सारे के सारे अगर ऑक्टेट्स है तो मुझे कुछ इस तरह से ऑक्टेट मिलेगा। सारे के सारे वंस है या सारे के सारे जीरोस है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर फाइंडिंग मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, accordingly you will get that octates. Understood, all of you? Yes, ma'am. Okay. 4 वेरिएबल वाले में अगर कुछ इस तरह से वंस आते हैं, then I will get a octet. ठीक है, या फोल्डिंग ऑफ मैप से if there are ones on the either side I can get a octet. उसी तरह से ये साइड में भी मुझे ऑक्टेट मिल सकता है फोल्डिंग ऑफ मैप से, depends upon where is the position of ones, so accordingly octates will be formed. Understood now what I'm saying? Yes, ma'am. Okay. अभी नेक्स्ट है सिंगल्स। इट इज सिंगल जीरो और सिंगल वन। whenever there is a one existing and there is nothing to form group adjacent to it, वन है, वन के बाजू में कुछ भी नहीं है, देन वो सिंगल बन जाता है और उसको ग्रुप करना ही पड़ता है। इफ यू आर सॉल्विंग अ सम फॉर मिन टर्म्स यू हैव टू कंसिडर ऑल वंस, इफ यू आर सॉल्विंग सम फॉर मैक्स टर्म यू हैव टू कंसिडर ऑल जीरोस। तुम उसे छोड़ नहीं सकते हो अगर उसका पेयर फॉर्म नहीं हो रहा है तो। जैसे कि कुछ इस तरह से अगर सम्स दिया है, अभी ये 2 वेरिएबल वाला देखो, ये वंस दिए हैं, अभी ये वंस जो है वो डायगोनल है, we cannot form a pair out of it, we cannot form a octet or we cannot form a quad out of it, so ये singles बन जाते हैं, but we cannot ignore them also, we have to consider them when we write the boolean expression using this reduction technique. ठीक है, सेम वे ये 3 वेरिएबल वाला जो के मैप है, इसमें भी अगर कुछ इस तरह से वन के पोजीशंस दिए हुए हैं तो वी कैन नॉट इग्नोर देम, वी हैव टू गेट सिंगल्स फ्रॉम दोस पर्टिकुलर के मैप्स। वैसे वैसे ही इधर भी 3 वेरिएबल वाले में यहाँ पे ये ऐसे सिंगल्स ग्रुप होंगे, सिंगल्स को हम कंसिडर करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल गेट अ टर्म इक्वेशन फ्रॉम देम। ये जितने भी हमने अभी तक ग्रुपिंग्स देखे, दैट इज सिंगल, पेयर, ऑक्टेट एंड क्वाड, ये ग्रुपिंग करने के बाद हमें एक रिड्यूस टर्म मिलने वाला है which will give us the simplified boolean expression. So that is what the whole technique is about. Okay, I repeat, after grouping these ones we are going to get a term out of that grouping. वो जो group है वो हमें term देगा, तो वो group से terms कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगी. So that I will start like that you will understand when I start solving the sums. ठीक है, उसी तरह से अगर ये 4 वेरिएबल वाला के मैप है और उसमें कुछ इस तरह से वंस अवेलेबल है जहां पे वी कैन नॉट फॉर्म पेयर्स और वी कैन नॉट फॉर्म ग्रुप और वी कैन नॉट फॉर्म ऑक्टेट, सॉरी क्वाड, देन हम ये सिंगल्स को ही कंसिडर करेंगे टू राइट द एक्सप्रेशन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल द 4 मैपिंग units, that is singles, pair,
octet and quad. ओके Yes. अभी प्रायोरिटी कैसे रहेगा ग्रुपिंग का, मींस जब भी हम ये ग्रुप करते हैं तो उसमें भी प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज इज टू ऑक्टेट. ओके फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्टेट को है, बिकॉज अगर अब तुमको ऑक्टेट मिल रहा है तो तुम उसको प्रायोरिटी दो. अगर तुम्हें ऑक्टेट नहीं मिल रहा है देन यू विल गिव प्रायोरिटी टू क्वाड. इफ यू आर नॉट गेटिंग क्वाड देन यू विल गिव प्रायोरिटी टू पेयर. After forming all these also, if only ones or zeros are left out which you need to consider, then you will go for singles. तो ये प्रायोरिटी भी ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगा. ऑक्टेट यानी कि ग्रुप ऑफ 8, क्वाड यानी कि ग्रुप ऑफ 4, पेयर यानी कि ग्रुप ऑफ 2 एंड सिंगल यानी कि ग्रुप नहीं, ओनली वन वैल्यू, सिंगल वन या सिंगल 0. Understood now all of you students? Yes. Yes, So ma'am. this is the priority level of grouping which you need to consider when you're actually doing these particular K-maps. Okay. Now let's moving on to what is this technique going to give us. Okay, what is this technique going to give us? Now, when we consider a single one or single 0, and when we write corresponding term for that, means every group is going to give you a term. Okay, every group, every unit or group. What is unit or group? These unit or group is going to give us a term. Means that is product term मिलेगा हमें for SOP and sum term मिलेगा हमें POS के लिए. यानी कि मिन टर्म्स के लिए हमें SOP, that is SOP, we will get a product term. अगर हम मैक्स टर्म्स के सम सॉल्व कर रहे तभी हमें सम टर्म मिलेगा, वो ध्यान में देना है. तो कंफ्यूजन मत होने देना दिमाग में, बिकॉज फर्स्ट टाइम फोकसिंग ओनली ऑन SOP form, that is product term, sum of products, and then we will go on to max term, that is product of sum. ठीक है. Now when we have singles in our K maps, तो एलिमिनेशन कैसे होगा? सिंगल्स विल नॉट एलिमिनेट एनी वेरिएबल. ओके सिंगल्स के हिसाब से अगर तुम्हारा के मैप 3 वेरिएबल वाला है तो तुम्हें 3 टर्म वाला प्रोडक्ट टर्म मिलेगा. 4 वेरिएबल वाला के मैप है तो तुम्हें 4 टर्म वाला इक्वेशन या टर्म मिलेगा. if a pair is formed then pair will eliminate single variable. If a quad is formed, quad will eliminate 2 variables, and if a octet is formed, octet will eliminate 3 variables. हाँ तो वो कैसे एलिमिनेशन होता है या कैसे वैल्यूज लिखे जाते हैं वो अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी. ठीक है. सो लेट्स कंसिडर दिस 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन. हाउ डू वी राइट terms from the group units. ठीक है. तो पहले तो हम इसे लिख देते हैं A B. So this is A bar A, this is B bar B. So now what will be the position of this min term? 0, 1, 2, 3. ये कैसे लिखा पता है ना सब लोगों को? स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके उसी तरह से अगर ये 3 पे वाला है A B C, so this is A bar A, this is B bar C bar, B bar C, B C, B C bar. so उसके हिसाब से ये आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. उसी तरह से अगर ये है A
B, C. So let's say this is A bar A, this is B bar, C bar, B bar C, B C, B C bar. So according to that, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. वैसे ये 4 वेरिएबल वाले हैं. So A, B, C, D. So this will be A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. This will be C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. ठीक है? According to this positions will come 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Understood now, all of you? Yes. Okay. Now, let's say, now I'm filling up some values. Let's say we have one pair over here. And one over here like this. And this is 0. या फिर यहाँ पे ये ones है. यहाँ पे ये single है. ठीक है? Then this one. Then कुछ इस तरह से वैल्यूज है. ठीक है? और अभी हमें इससे ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. मैं डायरेक्ट सम नहीं ले रही हूँ, पहले मैं सिर्फ बता रही हूँ, तुम्हें सिखा रही हूँ. And we are solving this, let's say these are all, I'm solving these for min terms. Means हम SOP solve कर रहे हैं. ठीक है? Means we will focus on grouping of ones. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? Students? Yes, ma'am. हाँ. So अभी now this two variable came up. Tell me what grouping will come. Here I cannot form a octet. You have to go priority wise. हमेशा दिमाग में priority चलते रहना चाहिए ये sums के लिए. First octet, second quad, third pair and fourth single. तो first octet है इसमें नहीं है. Second quad, is the quad existing over here? No. Third pair exist हो रहे. So one pair and a second pair. Understood? Yes, ma'am. After formation of all pairs, you need to check, is there any left out one? No, there is no left out one. 0 we are not focusing because we are solving for min terms. Now इसके equations कैसे आएंगे? तो ये जो term वाला है, ये जो group है, this is across B bar and B. So as it is across B bar and B, when we actually solve the equation for this term, B bar and B will get eliminated. बिकॉज बी बार कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, और दोनों वंस के लिए, ये ग्रुप के लिए कॉमन है ए बार. सो द टर्म वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन विल बिकम ए बार. सिमिलरली फॉर दिस वर्टिकल पेयर, ए बार कैंसिल कर देगा एंड द टर्म वैल्यू रिमेन्स एज बी बार. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Can you repeat again, ma'am? Yes, I will repeat again. That's why you just pay attention. This is very, very important lecture what I'm taking and what I'm telling you now. K-map बनाना, values fill करना, group करना, ये हो जाता है. This is all very simple things. But then later on writing expressions out of those pairs is a tedious task, because वो सबसे important है. Because
तुम्हें के मैप से डायरेक्टली रिड्यूस इक्वेशन मिलने वाला है. यू डोंट नीड टू गो थ्रू द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ऑल थ्रू अगेन. ओके. तो अभी ये वाला जो पेयर है वर्टिकल वाला, देखो जहां पे 0 मिन टर्म पोजिशन और 1 मिन टर्म पोजिशन हमने ग्रुप किया है. ओके. ये वाला, इसमें क्या हो जाता है, दीज टू वंस आर अक्रॉस बी बार एंड बी. बी बार एंड बी कैंसल कर देता है एक दूसरे को. दे नलिफाई द इफेक्ट ना. प्रोडक्ट टर्म्स लिख रहे हैं ना हम लोग, या फिर सम टर्म भी लिख रहे हैं तो भी वो नलिफाई कर देता है एक दूसरे का इफेक्ट. बराबर ना. यस मैम. हाँ. तो ये बी बार कैंसल्स आउट द इफेक्ट. what remains only a bar. So a bar is common for both the values, and that's why the term value of this particular group becomes a bar. Same way it goes on for the other one also. This vertical pair, 0th min term position और second min term position जो हमने ग्रुप किया है 1 1 का, इसका a bar और a कॉमन है, वो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को. a bar and a complement है तो वो कैंसिल कर देता है. b bar is common for it, so term value remains as b bar. So if I now write a expression for this particular thing, it will come as first term plus second term, because we are solving SOP equation, sum of products. तो यहाँ पे तो मुझे प्रोडक्ट कुछ नहीं मिला, बिकॉज ये मुझे डायरेक्टली रिड्यूस एक्सप्रेशन मिल रहा है ये के मैप से. So when you try to solve this particular thing, I will directly get a simplified equation. Rarely उसे और हम लोग ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जनरली नहीं होता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम. समझा ना सब लोगों को? यस मैम. यस मैम. हाँ हाँ बेटा. somebody said something. अभी वैसे ही ये सेकंड वाले, इसमें अभी जो सेकंड वाला ग्रुप है यहाँ पे ग्रुपिंग स्टार्ट करो. इज देयर एनी ऑक्टेट अवेलेबल? दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ, हॉरिजॉन्टल 3 वेरवे वाला जो मैंने निकाला, इसके बारे में बात कर रही हूँ मैं. यहाँ पे इज देयर एनी ऑक्टेट अवेलेबल? नो मैम. नो मैम. हाँ. नेक्स्ट, इज देयर एनी क्वाड अवेलेबल? यस मैम. यस मैम. यस. अभी ये फोल्डिंग ऑफ मैप करके वी कैन गेट अ क्वाड ना. यस. ठीक है. दूसरा कोई क्वाड एग्जिस्टिंग है? नहीं है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पेयर. इज देयर एनी पेयर एग्जिस्टिंग? नो मैम. पेयर है ना. यस मैम. एक अगर ऑलरेडी ग्रुप बना है और उसमें से अगर तुम्हें वन लेना पड़े, अगर पेयर या क्वाड या ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए, तो तुम लोग ले सकते हो. ओवरलैप हो रहा है बट दैट्स फाइन, यू कैन टेक, because instead of making this as single one, we will instead make a pair. Understood? यस. तो अभी ये जो हमारा पेयर बना, इसका टर्म वैल्यू क्या आएगा? ध्यान दो मेरी बातों पे, मैं क्या बात कर रही हूँ. प्लीज लिसन ऑल ऑफ यू नाइसली. प्लीज लिसन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो मैं कर रही हूँ ना, यही अप्लाइड है यूनिट 3 4 5 में. If you know K-Maps, unit 3 4 5 will become very very easy. It will finish off faster. इसमें टाइम लगता है. ठीक है, ध्यान दो मेरी बातों पे. तो अभी ये जो टर्म है, इसका एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, टर्म वैल्यू लिखना है. तो वो कैसे आएगा? ये जो टर्म है इसका ए बार कॉमन है, वो किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है. अभी जो ये 1 1 है, इसके अक्रॉस जो प्रोडक्ट टर्म है उसे देखो तुम बराबर से. बी बार सी बार एंड बी बार सी. इसमें अगर हम बी बार कॉमन लेते हैं तो सी बार एंड सी कैंसल आउट कर देता है एक दूसरे को, तो बच जाता है सिर्फ बी बार.
So term value of this particular pair forms A bar B bar. Understood all of you? Um, समझा ना? ठीक है, अभी उसी तरह से इस चीज का ये जो फोल्ड करके बनाया है उसे ध्यान से देखो. जो फोल्ड करके क्वाड बनाया है उसमें 1 1 1 1 ऑल 4 1s आर अक्रॉस ए बार एन ई, सो दैट गेट्स एलिमिनेटेड, कैंसिल हो जाता है वो. अभी टर्म्स पे ध्यान दो. बी बार सी बार एंड बी सी बार, बी बार सी बार एंड बी सी बार में व्हाट इज कॉमन? सी बार. Okay, B bar and B are complements of each other, so they cancel out each other, they get eliminated. So the term value only remaining is C bar. Understood? yes, ma'am. So expression for this becomes A bar B bar plus C bar. This is how quickly you are getting the reduced equation. समझा क्या? See, this is a very fun. These are all very fun sums. Means मजा आता है ये सब solve करने में. So you take interest and do it. Unit 3, 4, 5. Mark my words. It will become very, very easy for you. So practice K-maps a lot. Unit 2 important है. वो Unit 2 बराबर से आता है तो 3, 4, 5 is applications of it. Understood ना all of you? Yes, ma'am. हाँ. अभी मैंने जो बोला ना वो मेरी बातों पे ध्यान दो. ठीक है? What did I say here? Pair eliminates single variable, quad eliminates two variables. अभी देखते हैं हम कैसे eliminate किया है. अभी ये जो pairs हमने लिखे, pairs में एक एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है ना. पेयर जिस चीज के अक्रॉस है जहां पे अगर कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड लिटरल्स अगर आए हैं देन दोज आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, आर एलिमिनेटेड, राइट. तो सिंगल वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, बराबर है ना पेयर्स में. वही चीज अगर तुम क्वाड का ले रहे हो तो क्वाड में अभी देखो यहाँ पे ये क्वाड है, इसका टर्म आया सी बार, यानी कि ए भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि इट इज एलिमिनेटिंग टू वेरिएबल्स. अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू? Yes, वैसे ma'am. ही वैसे ही अगर हम लोग ये पेयर ले रहे हैं जिसका टर्म वैल्यू आया है ए बार बी बार, तो इस ये टर्म में ए बार बी बार में सी एलिमिनेट हुआ, यानी कि ये पेयर में सिंगल वेरिएबल एलिमिनेट हुआ. दैट इज हाउ यू वेरीफाई ऑल्सो that is what you have grouped and what you have got is proper or not. That's why you need to know those basic logic things. ठीक है? Now same way we go on for this next one. Okay? Next one में अभी ये जो नेक्स्ट थ्री वेरिएबल वाला है on left hand side, that is this one. Now tell me, is there any octet in this particular thing? ये K-map में octet है? नहीं है. Quad है? Quad है? नहीं है. ठीक है. So we will go on for pairs. तो pairs में एक पेयर ऐसे बनेगा, एक पेयर ऐसे बनेगा. उसके बाद में कोई पेयर फॉर्म हो सकता है? कैन अ पेयर बी फॉर्म? नो. तो नाउ वी विल गो फॉर, उसके बाद में भी एक सिंगल वन बच रहा है सेवेंथ मिन टर्म पोजीशन पे, सो वी विल गो ऑन फॉर कंसिडरिंग दैट. तो ये सिंगल्स बनेगा. ठीक है. तो अभी ये वाला जो पेयर है इसका टर्म वैल्यू क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? A bar will get cancelled, eliminated. What will be the term value? B bar, Please. C bar. ठीक है. नेक्स्ट ये वाला जो पेयर है इसका टर्म वैल्यू क्या आएगा? ये वाला जो ग्रुपिंग है, पेयर है, इसमें ए बार कॉमन है, सो वी राइट दैट डायरेक्टली व्हाट इज कॉमन. एंड बी बार सी बार और बी बार सी में से बी बार इज कॉमन, C bar will get eliminated. So this will be the value of it. So hence for this the expression y will become, sorry मैंने सिंगल का नहीं कर लिखा. सिंगल का क्या आएगा अभी, ये सिंगल का बताओ मुझे. सिंगल का इट इज अक्रॉस व्हाट A and it is across what BC. So इसका टर्म वैल्यू आएगा ABC. Understood? Yes, ma'am.
मैम। तो इसका वैल्यू एक्सप्रेशन आएगा ए वाई विल बिकम ए बार बी बार प्लस बी बार सी plus ABC. So from the group we are getting product terms, and as it is a min term, means it is a SOP form, that is sum of product. We are writing sum of all these products what we have got from the groups. Understood all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अभी now we go on to the 4 variable K map. ठीक है? अभी 4 variable वाले K map में here you look into. Okay. Is there any octet available over here? No, ma'am. No. Is there No, any ma'am. quad available? Quad? Yes, ma'am. This is quad 4 ones together, vertically or horizontal, या फिर adjacent to each other, right? दूसरा कौन सा क्वाड है? अगर मैप को हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये वाला क्वाड है ना, बराबर ना? 4 Yes, एजेस वाला क्वाड, एज वाला क्वाड, ठीक है? एंड क्वाड के बाद कैन नो मोर क्वाड इज देयर. नाउ वी विल गो ऑन फॉर पेयर्स. तो कौन सा पेयर्स इसमें पॉसिबल है? विच पेयर्स आर पॉसिबल? ma'am. This one, 12, 13, right? Yes, ma'am. Then no other pair is possible. अभी ये 7 min term position एक single बन जाता है. Yes, ma'am. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. So now we write down the expressions. तो अभी ये जो 0, 4, 12, 18 वाला हमने quad बनाया, उसका expression क्या आएगा? What will be the expression? C bar D bar is common for them, right? और A बार B बार A बार B A B A B बार ये चारों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को. क्यों? बिकॉज चारों में दो दो टर्म्स A बार A और B बार B के हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. So the whole A B terms get cancel out and only C bar D bar remains. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये टर्म वैल्यू आता है इसका. ठीक है, नेक्स्ट ये क्वाड का हो गया. अभी ये वाले क्वाड का लिखो, फोल्डिंग ऑफ मैप वाला जो किया है हमने. हाँ, वो ध्यान देना. हाँ, उस पे अभी ये जो फोल्डिंग ऑफ मैप से हमने 0 to 8, 10, हाँ 0 to 8, 10 पे ध्यान दो. 0 to 8, 10 मिन टर्म पोजिशन. ठीक है, तो इसमें ये वाला टर्म है ए बार बी बार. बेटा मैं हाईलाइट करती हूँ उसे. ए बार बी बार और ए बी बार में व्हाट इज कॉमन? टेल मी. A bar B bar Ma'am, and A B bar. B bar is common. So you write B bar, A bar will get cancelled out each other. Then next term of this folded map is C bar D bar and CD. What is common in that? C bar D bar bar. and CD में D bar में क्या common है? D bar. So the term value for this folded map comes as B bar D bar. Understood all of you? Yes, ma'am. हाँ, अभी now it Yes, is so ma'am. clear. Quad eliminates 2 variables. हाँ, अभी ये K map हमने बनाया है 4 variable वाला K map. तो उसमें 4 variables है A, B, C, D. तो you can see the first term C bar D bar में A, B eliminate हुआ, यानी कि 2 variables. The second folded quad जो बना उसमें A और C eliminate हुआ. Again 2 terms. So quad eliminates 2 terms. ठीक है. नेक्स्ट गोइंग ऑन फॉर दिस पेयर 12, 13 वाला पेयर, इसका वैल्यू क्या आएगा? इसके लिए ए बी इज कॉमन बिकॉज इट इज अक्रॉस ए बी. नाउ यू लुक आउट फॉर द वर्टिकल वैल्यू. सी बार डी बार और सी बार डी में कॉमन क्या है? सी बार. सी बार डी कैंसल ईच अदर. सो इसका टर्म वैल्यू ये बन जाता है ए बी सी बार. फिर ये जो 7th टर्म है इसका टर्म वैल्यू क्या बनेगा? 7th टर्म का रो वैल्यू देखो क्या है? ए बार बी. और कॉलम वैल्यू देखो क्या है? सी डी.
That's why the term value becomes a bar b c d, because singles do not eliminate any variable. You will all get 4 variables या जो भी variables का k map है वो. It doesn't eliminate any variable. Okay, so the final expression for this value becomes y is equal to फर्स्ट क्वाड का हमें मिला c बार d बार, सेकेंड क्वाड का मिला b बार d बार, फिर पेयर का मिला a b c बार, और फिर सिंगल का मिला a बार b c d. So that becomes the final expression. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. While, So now, ma'am, हाँ बोलो बेटा. while writing the final expression, we need to consider the priority again. नहीं नहीं वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तुम किस तरह से भी लिख सकते हो. That's not a issue. Understood? Yes, ma'am. So moving on quickly over here. Now I'm going to show you that how this reduction technique is so efficient. So first we are using a sum which we have already actually seen in the prior section of this K-map, min term, max term. Okay. The question is convert the following numerical form into sum of min terms. ये question है, ठीक है, 4 वेरिएबल वाला. तो ये already part solve करके रखा है ताकि थोड़ा टाइम कंज्यूम ना हो उसमें. हाँ, तो 4 वेरिएबल वाला के मैप है, ये ध्यान दो इसके ऊपर. A, B, C, D are the inputs. So 4 variable we will be considering all 16 combinations 0, 0, 0, 0 to 1, 1, 1, 1. Having decimal position 0 to 15 and minterm ये क्या हुआ? Sorry. Having decimal position 0 to 15 and minterm position also M0 to M15. और ये उसका अभी एक्सप्रेशन देखो, ये हमें एक्सप्रेशन दिया जाएगा. F of A, B, C, D is summation of M 1, 2, 3, 6, 7, 15. ठीक है, यानी कि मिन टर्म पोजिशन 1 M1 आउटपुट हाई है, मिन टर्म पोजिशन M2 आउटपुट हाई है, M3 हाई है, M6 हाई, M7 high and M15 high. All others are 0. That is how we get the output in the truth table form. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी ये मिन टर्म के टर्म्स वैल्यू कैसे लिखे पता है ना तुम लोगों को? A bar, B bar, C bar, D bar. How I have written that? You know ना? जीरोस के जगह पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आएगा, वंस के जगह पे डायरेक्ट वैल्यू आएगा वेरिएबल का. So for the first combination A, B, C, D, it is 0, 0, 0, 0. So it came as A bar, B bar, C bar, D bar. Next is A is 0, B is 0, C is 0, D is 1. So it came as A bar, B bar, C bar, D. पता है ना ये कैसे लिखते हैं? Yes, ma'am. Now in this we will consider, अभी हम ये पहले वाला सम ही सॉल्व कर रहे हैं कि जैसा वंस वैल्यू जो है वो टर्म्स हम कंसिडर करेंगे, यानी कि वी कंसिडर ए बार बी बार सी बार डी, देन ए बार बी बार सी डी बार, देन ए बार बी बार सी डी, ए बार बी सी डी बार, देन ए बार बी सी डी एंड लास्ट ए बी सी डी. ये कंसिडर करेंगे टर्म बिकॉज द आउटपुट एक्सप्रेशंस ऑफ दोज इज 1 एंड देन वी विल सॉल्व एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. Okay, so that's why the output expression y will become this. The output expression simplified form y is summation of m's. Which m's? M1, M2, M. कि वो भी बताओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके अभी.
मैम आपका आवाज लैग हो रहा था, can you please repeat? Response. हेलो। सॉल्व करूँ ये? नहीं मैम। फर्स्ट टर्म ए बार बी बार सी बार डी वैसे ही रहता है। सेकेंड और थर्ड टर्म में से ए बार बी बार सी वी टेक कॉमन, डी बार डी बिकम्स 1। थर्ड और फोर्थ टर्म में से ए बार बी सी वी टेक कॉमन, डी बार प्लस डी बिकम्स 1 एंड देन लास्ट टर्म इज ए बी सी डी। ठीक है। नेक्स्ट, ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी डी। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में a bar b bar is common, we take it outside, remains inside c bar d plus c. Third or fourth term में bc we take it outside, remains inside is a bar plus ad. Now this here we use the derived laws. So c bar d plus c reduces to c plus d and a bar plus ad reduces to a bar plus d. Then we open up the bracket, so we have a bar b bar c plus a bar b bar d plus a bar b c plus b c d. Then again first term and third term we take a bar c common, remains inside bracket b bar plus d which becomes 1, and next two terms we keep it the same, so that becomes a reduced expression a bar c plus a bar b bar d plus b c d. So this is the process what we have used up till now. समझा ना? यही हमने सम्स किए ना सॉल्व मिन टर्म और मैक्स टर्म्स के इसके पहले के सेक्शन में। सो मिन टर्म Yes ma'am. एक्सप्रेशंस से हमें एक्सप्रेशंस मिले व्हिच वी रिड्यूस्ड यूजिंग बुलियन अलजेब्रा एंड वी गॉट द सिंपलेस्ट इक्वेशन। तो ये जो इतनी मेहनत है वो हम क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट फॉर दैट वी यूज द एफिशिएंट टेक्निक ऑफ के मैप। सो के मैप से ये जो पूरा सॉल्विंग पार्ट है वो निकल जाता है, मेहनत निकल जाता है। वी गेट अ इजी क्विक सॉल्यूशन of the simplified equation. So let's see how. Okay, so this is a K map. So first we will make a K map. So now using K maps, let's see how can we solve. ठीक है, तो पहले K map बनाते हैं। A, B, C, D. I could have easily kept these K maps ready, but I have not doing that because रेडी करके डायरेक्ट बताना और मैं खुद बना के बताना फर्क पड़ता है, बिकॉज when I am making, you also tend to understand it and it imprints in your mind that how the structure has to be made. So A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar, C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. Write down the position values. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये इस तरह से क्यों आया समझा ना सब लोगों को? Students, Yes ma'am. students are tired now, no? 8 o'clock onwards. Yes ma'am. Yes ma'am. अभी ये जो आउटपुट टर्म्स है वो देखो 1, 2, 3, 6, 7, 15। So 1, 2, 3, 6, 7, 15। वहां पे मैंने वंस फिलअप किया। अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू? डायरेक्टली न्यूमेरिकल फॉर्म देख के, न्यूमेरिकल फॉर्म देखो, समेशन ऑफ m which mean terms are having high output value 1, 2, 3, 6, 7, 15।
तो 1 2 3 6 7 15 पे मैंने वंस डाल दिया. क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, yes, ma'am. बाकी सब जगह पे जीरोस आएगा ऑटोमेटिकली. नाउ एज वी आर सॉल्विंग फॉर मिड टर्म्स वी विल ग्रुप नाउ वंस. वंस को हमें ग्रुप करना है. ये जीरोस अगर हम नहीं भी लिखते हैं के मैप्स में तो भी चलेगा. इट इज नॉट अ इशू. ठीक है. सो नाउ वी गो ऑन फॉर द ग्रुपिंग पार्ट. अभी हम ग्रुपिंग करेंगे. तो इज देयर एनी ऑक्टेट इन दिस स्ट्रक्चर? No, ma'am. ऑक्टेट है, क्वाड है. Yes, ठीक ma'am. है. दिस वन क्वाड इज देयर. और कोई क्वाड अवेलेबल है? Um, No, ma'am. Next, I will group go for pairs. So one group is formed, and then this group is formed. This pair is formed. Sorry, understood ना? yes, ma'am. अभी ये जो क्वाड है इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? ध्यान दो. ये क्वाड का फर्स्ट यू लुक आउट फॉर दीज हॉरिजॉन्टल वैल्यूज. ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज है दोनों ए बार बी बार और ए बार बी, इसमें कॉमन क्या है? ए बार. ठीक है. वर्टिकल वैल्यूज देखो. सी डी बार में कॉमन क्या है? सी. डी बार gets cancelled. So the term value of this expression is a bar c. Clear all of you? Students, Yes, ma'am. ये क्या नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या तुम लोगों ने? हाँ. नहीं, ma'am. Yeah, ma'am. ओके. अभी नेक्स्ट ये वाला जो टर्म, ये वाला जो पेयर है, इसका टर्म वैल्यू क्या आएगा? ये वाला टर्म का ए बार बी बार इज कॉमन, सो यू राइट डायरेक्टली सी बार डी. और सी डी में कॉमन क्या है? डी. C bar gets cancelled. So this becomes the term value. Then next इसका क्या आएगा? CD is common for that. A bar B and AB में common क्या है? B. So BCD is the term value. So therefore, output expression is sum of the three terms or the three group equations what we get. So basically, it is A bar C plus A bar B bar Hello, ma'am. Hello, हाँ हाँ. I'm there ना? Yes, ma'am, you are there. किधर गया? मुझे दिखाई नहीं दिया लेक्चर का ये. हाँ, now I'm able to see. हाँ, ठीक है. Now you compare this with the expression what we have got. इधर क्या मिला था? A bar C plus A bar B bar D plus B C D. Same expression है कि नहीं Yes, है? ma'am. Yes, So ma'am. that is how we get the expression. Expression के बाद ये expression का हमें logic diagram find करना होता है depending upon what is asked. तो इसका logic diagram क्या आएगा? Logic diagram इसका क्या आएगा?
We have 4 inputs. Now इसका लॉजिक डायग्राम का भी एक टेक्निक बताती हूँ मैं. 4 inputs. A bar, B bar, C bar, D bar. So A B C D. और यहाँ से मुझे मिल रहा है A bar, B bar, C bar, D bar. हाँ, these are basic things. ये सब डायग्राम में तुम ड्रॉ करना सीख जाओ. Now next will come, we want first term A bar C. तो हमने A bar ले लिया, हमने C ले लिया, and we gave it to a AND gate. So here we get A bar C. Next A bar B bar D. So we take A bar, we take B bar, and we take only D. We can give it to 3 directly to a AND gate. So here we get A bar, B bar, D. And next is B, C, D. So B, only C, only D. Give it to AND gate. So we get B, C, D. These together are given to a OR gate to get the final expression. So that becomes a logic diagram. Understood all of you? Yes, ma'am. So that is your one logic sum. अच्छा लगा ये topic? ये easy है ना compared to solving with Boolean algebra? बराबर ना? Yes. है कि नहीं है? हाँ मैम, इजी है. हाँ, तो ये ऐसे ही सब है अभी यूनिट 2, 3, 4 में. ठीक है, it is in this way only. हाँ, अभी तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर कभी स्टार्ट हो रहा है? 12:40. क्या 12:40 को? ओके ओके ओके, आई विल टेक फॉर सम टाइम एंड देन 11:30 आई विल लीव यू. जस्ट वेट. So this is the question given to you. Just a moment, all of you. Most important. Oh, thank you. So sweet of you. Okay, so this is the question given to us. F of A, B, C, D is equal to summation of M 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15. Okay, so let's see how we can solve this with K-map. अभी ये जो सम दिया है ना, ये अभी जो मैं यहाँ पे लिखा है ना, ये उसका हम कैसे टेंटेटिव वैल्यू लिखते हैं. जैसे कि अगर 1 है तो बेसिकली 1 का मतलब क्या है? व्हाट इज 1 का मतलब? 0, 0, 0, 1. 3 is 0, 0, 1, 1. 7 is 0, 1, 1, 1. 8 is 1, 0, 0, 0. 10 is 1, 0, 1, 0. 12 is 1, 1, 0, 0. 13 is 1, 1, 0, 1. And 15 is 1, 1, 1, 1. ठीक है, उसके हिसाब से टर्म वैल्यूज आते हैं. तो बेसिकली 0, 0, 0, 1 का टर्म वैल्यू आएगा A बार, B बार, C बार, D. 0, 0, 1, 1 का टर्म वैल्यू आएगा A बार, B बार, C, D. 0, 1, 1 का बेसिकली 7 टर्म वैल्यू आएगा A बार, B, C, D. Means you can actually, what I'm trying to tell you is, to get the term equation, you can actually visualize
what is the binary value of that particular decimal term, decimal number, and then write down the term value literal form में. समझा ना मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ सब लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, ये लास्ट है, मैं ये लास्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हें ब्रेक दूंगी क्योंकि मेरा भी अभी लेक्चर है इसके बाद में कॉन्सिक्वेंट दूसरा, सो दैट एटलीस्ट 12:40 तक तुम्हें ब्रेक है, बिकॉज उसके बाद में मैं प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ, तुम लोग को पता है ना? यस मैम. Yes. हाँ, 2:30 to 5 में प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ, ठीक है? सो अभी ध्यान दो इसके ऊपर. तो 8 लिखा जाएगा A बार, A, B बार, C बार, D बार. 10 विल बी A, B बार, C, D बार. ऐसे करके ये एक्सप्रेशन आएगा. अगर तुम ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो तो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन ये दो तरीकों से मिलेगा. आइदर यू विल गेट दिस टर्म और यू विल गेट दिस टर्म. सिंप्लीफिकेशन से कई सारे तरीके तुम्हें मिल सकते हैं, कई सारे टर्म मिल सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम के मैप्स. के मैप से हम किस इजी तरीके से, हाउ इजीली, हाउ स्मूथली वी कैन सॉल्व दिस एंड गेट एंड कम टू द फाइनल टर्म. क्विकली हो जाता है, ठीक है? सो दिस सम नाउ वी आर सॉल्विंग यूजिंग के मैप. A, B, C, D, A बार, B बार, A बार, B, A, B, A, B बार. मैं जानबूझ के हर टाइम ये बना रही हूँ. C बार, D बार, C बार, D, C, D, C, D बार. So you understand that if you know it, if you practice it out, it is very easy. Half-minute job to complete it. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है? Now we will substitute for the output ones. ठीक है? Look at what minterm position we have to substitute. 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15. याद कर लो. 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15. So 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15. I will check one more time because वही important है. तुमने एक भी ज्यादा 1 extra add कर दिया जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, then the whole expression will go wrong and your answer will come wrong. 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15. So 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15. Right, all of you? Understood? Now we'll go Yes, ma'am. on for grouping. Grouping करना है. अभी grouping में is there any octet available over here, all of you? No, ma'am. No, ma'am. Quad available है? No, ma'am. No. क्या करना पड़ेगा? Pairs form करने पड़ेंगे. Pairs. ठीक है? So we go 1, 2, 3 और ये फोल्ड करके 4. Clear all of you? Yes, ma'am. अभी उसका एक्सप्रेशन लिखो. What will this give? इसके लिए A बार B बार is common. C बार D and C D में क्या common है? D. C बार gets cancelled. ठीक है? So this is the product value for it. Next. इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए C D is common and A बार B and AB में से ये दो terms में से what is common? B. A बार gets cancelled. So B C D is the term value. समझ में आ रहा है ना मैं टर्म्स कैसे लिख रही हूँ सब लोगों को? Yes, ma'am. अभी ये Hmm. this one AB is common. C बार D बार और C बार D में what is common? C बार. D बार gets cancelled. So this is the term value. Then this folded map में what is
कॉमन यू चेक. इसमें a b bar is common and c bar d bar और c d bar में d bar is common. C bar gets cancelled. Is this clear to all of you, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now the final expression comes as y is equal to, you will write all of them, a bar b bar d plus a b c bar plus a b bar d bar plus b c d. ठीक है, ऐसे. तुम्हें अभी इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो तुम ले सकते हो. ये इक्वेशन अलग आया है, इससे अलग आया है, बट दैट्स फाइन, नॉट अ इशू. बिकॉज ये ग्रुपिंग ना कई सारे तरीके से हो सकता था. जैसे कि ये है ना, ये ग्रुपिंग कुछ इस तरह से भी हम कर सकते थे. लॉजिकली दे ऑल आर करेक्ट. मैं बताती हूँ तुम्हें. ठीक है. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो 13 कैसे 14. अरे गलत हो गया. मैंने भी इतना सालों के बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं गलती कर सकती हूँ. 8 9 10 10 11 12 13 14 15. तो बेसिकली फोकस होना चाहिए और कुछ नहीं है. तो ये वैल्यूज थे कुछ. So this one is proper as per that. मैं एक्सप्रेशन के हिसाब से बना रही हूँ. फिर ये एक बराबर है. देन ये बनाया उन्होंने एक्सप्रेशन के हिसाब से. ये बनाया और ये बनाया. अंडरस्टूड. समझा ना. ये एक्सप्रेशन के हिसाब से ये वाला था करनौ मैप्स. ये भी राइट है, गलत कुछ भी नहीं है. ये मैंने जानबूझ के ऐसे बताया कि डिफरेंट पीपल में गेट डिफरेंट लॉजिक, बट what you group according to the min term position given and what answer you get should be correct. The term values what you write for the grouped equation should be correct. Is this clear? yes Yes, ma'am. so तो basically जो for the है, first हाँ ये जो है ये एक्सप्रेशन के लिए है. लेट्स से इक्वेशन आई एम राइटिंग. सो ये इक्वेशन के लिए ये तुम्हें के मैप मिला. Understood all of you students? मैम फर्स्ट वाला जो बनाया उसके लिए मार्क्स मिलेगा ना, किसके लिए बाबा? जो हम लोग ने ऑरेंज कलर में बनाया है लेफ्ट साइड. ऑरेंज स्क्वायर में लेफ्ट साइड जो बनाया था हमने After 4 minutes.
ये वाला, हाँ, yes, that's why I told you ना, this one is also correct, this one is also correct. दोनों K maps correct है, दोनों expressions correct है, even if they seem to be different. Okay. Understood? Yes, ma'am. Just a minute.